के पहले हमारा एक यूनिट नंबर 2 शुरू हो जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है. So let us see like how we manage, but it is like because we have nodal analysis for the further discussion. यानी यहाँ पर हमें nodal analysis भी discuss करना है. So what I'll do, I'll just take mesh analysis का 1 or 2 numericals, because you may have the offline examination, sessional examination, which is in the discussion. So I'll take 1 or 2 more numericals in today's class. And so let us start. So shall we begin? Very few students have joined, no? I think आज का Saturday and that too first lecture, I think all of you have kept in mind that like आज आपका CRT होगा, and all of a sudden you got the message from me for network analysis. Okay, just a second. Yes. So कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, let us continue on the same point by keeping same fundamentals in discussion, and instead of creating confusion, मैं क्या करता हूँ, what I'll do, जैसे मैंने आपको कहा था कि while applying Kirchhoff's voltage law to this particular network, we consider positive as starting terminal and at negative, and the amount of current which is passing through this particular loop is I1. Okay. So with respect to this I1, we have developed one equation which is written here as equation number 1. Now, after considering loop 1, we are considering loop 2. So this is our loop 2. Now in loop 2, again consider the currents is clockwise, and in fact, if you find third loop, you all again have to consider the clockwise orientation for the current. It is always better, and it is in fact given, stated in IIT's lecture that always consider the loop current in clockwise orientation if the voltage source is placed on the left hand side with positive upward and negative downward. So for this particular positive negative voltage source, you have to consider the orientation of currents as clockwise. Okay. And if it is negative positive, then accordingly you can consider all the currents as anti-clockwise, but otherwise you have to consider it as a clockwise. So we are considering I2 is again clockwise. It starts from say positive, and like when it follows the path of resistance 30 ohms, let us say this is positive for the entrance and negative for the exit. For 30 ohms horizontal branch, for 30 ohms vertical branch, again positive upward, negative downward. When it enters into this 20 ohm, let us follow the same fundamental. It attains positive here and negative on the other side. Positive on the lower side and negative on the upper side. As I2 is the current which enters into 20 ohm resistance, right? So therefore, what we can write is, now I think with respect to this I2 only, we wrote the expression minus 30 I2 for horizontal branch, minus 30 I2 for vertical branch, minus 20 I2 minus I1. As we are considering I2 greater than I1, so therefore it is minus 20 I2 minus I1 is equal to 0. Okay, so there is no much change in the expression, and in fact the expression is same. The only thing is the fundamental which we considered as whenever we consider a loop current, that loop current का effect we have to consider on the resistance. मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब आप कोई भी लूप करंट कंसिडर करते हो तो उस करंट का रेजिस्टेंस के ऊपर जो इफेक्ट है वो आपको कंसिडर करना है. तो जैसे यहाँ पर I2 करंट आपका 20 ओम से एंटर हो रहा है, तो जिस साइड से वो एंटर होगा, जस्ट गिव साइन टू दैट पर्टिकुलर 20 ओम. सो पॉजिटिव लोअर साइड में रहेगा और नेगेटिव अपर साइड में रहेगा. सो दिस वे वी गेट द equation as minus 30 I2 minus 30 I2 minus 20 I2 minus I1, as 20 is greater than I1. I2 is greater than I1. So therefore we are getting minus 20 I2 minus I1. Now with respect to that, if we further solve this equation, minus 30 I2 minus 30 I2 minus 20 I2 plus 20 I1 is equal to 0. Therefore we are getting 20 I1 minus 80 I2 equal to 0. That is equation number 1. Okay.
Now I'll just make one change here. Multiply this expression. Now instead of calling this as equation 2, okay, now multiply this particular above equation with -1. Just multiply this expression with -1. So what I'll get? I'll get -20 I1. -20 I1 plus 80 I2 plus 80 I2 and negative 0, it means 0. So now this is my expression number 2. -20 I1 plus 80 I2 is equal to 0. अब यहाँ पर आप इसको -1 से भी मल्टीप्लाई करते तो इफेक्ट में यानी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, ओनली दैट पर्टिकुलर current is becoming negative. Otherwise, there is no change takes place in the equation. Let us further take this in the next slide. यहाँ पर मैं और इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. So therefore, I am getting -20 I2, 20 I1. Sorry, -20 I1 plus 80 I2. Okay. If I do so, I get this as expression 2. यानी मुझे मैट्रिक्स में क्या मिलेगा? -20 plus 80. That's all. यानी एक पहले आपका नेगेटिव -80 था, उसको मैंने प्लस किया बिकॉज आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद द माइनस से. ओके, सो दिस वे यू गेट द मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स फॉर्मेशन. This is called as matrix formation. Now we have to directly form the matrix for the given circuit. We have to form the matrix for a given circuit. So that concept also we have to learn. So let us see, like, is it possible to learn here it or not? I just make a space here so that okay, तो यहाँ पर मैंने एक स्पेस थोड़ा सा क्रिएट कर दिया है एंड नाउ आई एम टेकिंग द सर्किट हियर. Just a second, guys. I am copying the circuit, original circuit here, so that you can. Yes, we don't want L loop here. Fine. Even this, right. Okay. अब हमें क्या करना है? We have to directly form the matrix from this particular given circuit. यानी यहाँ पर आपको जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट से आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म करना है. So वो मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे? All of you just carefully listen to this point. Okay. अब ध्यान से सुनना. यहाँ पर जो हम लोगों ने this equation which we formed, okay, so this particular equation and this matrix which we formed is by applying Kirchhoff's voltage law to two loops. अब हमें करना क्या है? We have to directly form the matrix, and from that matrix you can easily develop the equation. Okay, अब matrix क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ. If the circuit is of two loops, then you will get, listen it carefully, I just call this as resistance R1 for time being. This as resistance R2, this as resistance R3, and this one as resistance R4. Right? Now, this particular 30, this 30 is the summation of R1 and R3. Please check whether it is correct or not. This 30 ohms, which we are saying in matrix, यानी first row, first column. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो आपने 30 लिखा हुआ है, that 30 is the summation of 10 and 20. So 10 plus 20 is 30, and therefore over here you can write directly as R1 plus R3. Okay, then here you have -20. This -20 means the intermediate resistance which is present here.
यानी यहाँ पर जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका प्रेजेंट है वो आप लिख रहे हो विद अ नेगेटिव साइन, एंड देयरफॉर राइट इट हियर इन 2x2 मैट्रिक्स, इट इज -R3. Okay, then after getting -20 here, you again have a -20, so just copy down this -R3 here. Just copy that -R3 again in the second row, so you get -R3. Then 80 means summation of 30 plus 20. 30 plus 30, 60 plus 20, 80. It means it is the summation of R2, R4 and R3. So I just write it here, R2 plus R4 plus R3. Okay, R2 plus R4 plus R3. Okay, so now this is my matrix, correct? On other side, this is 2x2 matrix. On other side, I do have to write I1, correct? I have to write I2, right? Equal to, just a second, ये equal to मैं यहीं पे ले लेता हूं. Okay, so I'll just take it here only. Yes. So this is R equal to, correct? In bracket. Now 220 is first voltage. Let us say it is V. As there is only one voltage present, therefore I just keep it that voltage as V. And on there is on the second loop there is no voltage present, voltage source present, therefore it is 0. So this is my generalized expression if I have this kind of circuit. अब circuit में थोड़ा बहुत ही change होगा, there is no much change takes place, but accordingly you can write the expression or you can form the matrix. तो हमें पढ़ना क्या है? What we have to learn, what we have to understand? We have to understand the formation of matrix directly. We have to understand the matrix formation directly. If not, like if you people are not understanding the matrix formation, at least form the equation directly instead of writing the Kirchhoff's voltage law equation. Like applying Kirchhoff's voltage law, writing that expression and consuming your time to solve the numerical, it is always better to write the equation directly, expression directly, or form a matrix directly. So this is what the way of formation of matrix. Now you can take the help of your calculator to solve the matrix if you know how to solve the matrix from the calculator. Like with the help of calculator, you have to solve this matrix. If you don't know to solve the matrix using calculator, then I suggest you to solve at least this particular equation. That is, feed this equation in the calculator and get it solved. Okay. Now to enter the or to use the calculator in the equation format, you just have to use these constant values. You have to use these constant values, which I am just, so these values which I have encircled, जो मैं आपके इन values को circle कर रहा हूँ, you have to use those values in the calculator to get the final answer. Okay. Now before going with the solution, can anyone tell me whether you got the method or not? Sir, I am going to take one more numerical on this, so you don't worry. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. You will understand that matrix formation very easily. Okay, so आपके तरफ से मुझे कोई सवाल नहीं आ रहा है. So I just consider that everyone understood the concept of equation formation and matrix formation. Okay, so before getting before solving the next numerical, can anyone tell me the value of this I1 and I2?
Just tell me the value for I1 and I2. Anyone? I think yesterday you might have solved this, no? So can anyone I1 tell the equal values of I1 and 8.8, I2? 8.8 ampere. Anyone? I1 Yes, sir, equal 8.8. 8.8. I think your voice is somewhat low. Yeah. Tell me. Sir, 8.8. The value of I1 is 8.8 ampere. Okay, very good. Sir, Right, Bhairav. And value of I2. 2. ओके, भैरव इज करेक्ट एंड आपका आवाज मुझे सुनाई नहीं आया बट कुछ तो समझ में आ गया. इट इज 2.2 एम्पियर. So the value of I1 and I2 is 8.8 and 2.2 ampere. Whether it is really correct or there is some like negative value present. अच्छा, एक बार मैं I just check from my calculator. So I have to feed सर 30. Yes. Minus सर जैसे 20. मैट्रिक्स फॉर्मेशन में R1 प्लस R3 लिए, हाँ. उसके बदले R2 भी तो ले सकते थे, 30 था तो. R2 कौन सा? ये वाला? हाँ. नहीं, नहीं, ये 30 कहाँ से डेवलप हुआ, ये बताइए मुझे. अब जैसे मैं अगर पिछले वाले इक्वेशन में जाता हूँ, ओके जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लूँ. यस, I1 गेटिंग 8.8 एंड 2.2. फाइन. सो यस, करेक्ट है. ओके, अब ये जो 30 I1 जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना, ये 30 कहाँ से आ रहा है देखिए. 30 I am getting after adding 10 and 20 in the equation. So 10 plus 20 is 30. And where is 10 and where is 20? 10 is this one. 10 ohm यानी ये रेजिस्टेंस है, और 20 ohm रेजिस्टेंस कौन सा है? ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस. तो ये ध्यान में रखें कि जैसे कोई भी आप लूप कंसीडर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लूप कंसीडर किया, तो इस लूप में कौन कौन से रेजिस्टेंस पे उस करंट का इफेक्ट है. इसका मतलब कौन कौन से रेजिस्टेंस से वो करंट पास हो रहा है. सिंपल चीज कि ये जो करंट है, ये करंट कौन कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है. अब ये I1 करंट, अब अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर आई जस्ट राइट, I1 करंट कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, बता सकते हो बेटा? R1 ये और R3. हाँ, R1 और R3 यानी 10 ओहम्स और 20 ओहम्स, बराबर है. अच्छा, दूसरी बात, I2 कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है? R2, R4, R3. वेरी गुड. सो R2 माने 30, R4 माने 30 एंड R3 माने 20. सो इसका मतलब क्या हुआ कि I2 ये तीन रेजिस्टेंस से अगर पास हो रहा है तो मुझे उनका एक कनेक्शन शो करना होगा, और I1 मेरा 10 और 20 से अगर पास हो रहा है तो उसका मुझे कनेक्शन शो करना होगा. लेकिन जब मैं लूप केवीएल यहां पर लगाता हूं तो केवीएल लगाते वक्त मुझे ये 20 कंसिडर करना है, ये वाला 20. अब जब मैं ये 20 कंसिडर करता हूं, I1 तो उस 20 से पास हो रहा है, बट साथ साथ उस 20 से I2 भी पास हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 220 वोल्ट के लिए केवीएल अप्लाई करता हूं तो I1 20 से पास हो रहा है, लेकिन उस 20 से और एक करंट पास हो रहा है, माने I2. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया I1 पास होगा 20 ओम से, लेकिन 20 ओम से और एक करंट पास हो रहा है I2. तो इसका मतलब यू हैव टू कंसीडर दीज इफेक्ट्स, यानी यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स, I1, 20, I2. आपको ये तीनों चीजें कंसीडर करनी होंगी, I1, 20, I2, जब आप लूप 1 कंसीडर करोगे. जब आप लूप 2 कंसीडर करोगे तो आपको कौन कौन सी चीजें कंसीडर करनी होंगी? आपको कंसीडर करना होगा I2. अब I2 कहां से पास हो रहा है? 30 और 20 से, 30 और 20 से, और 20 से और एक करंट पास हो रहा है, वो है I1. तो इसका मतलब आपको ये फिर से 4-5 चीजें यहाँ पर कंसिडर करनी होगी. यहाँ पर भी आपको 4 चीजें कंसिडर करनी होंगी, दैट इज I1, 10, 20 एंड I2. इस तरीके से देखते हैं ना. मैं आपको और एक न्यूमेरिकल लेता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा. अब फिलहाल बताइए, आप लोगों ने, सब लोगों ने ये लिख लिया है क्या न्यूमेरिकल? अगर न्यूमेरिकल नहीं लिखा है तो रिकॉर्डिंग चल रही है, पहली चीज. दूसरी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो.
आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? Like if I get the green signal from your side ना, I'll be comfortable so that I can discuss further. Yes, sir. Okay. So any other wants to share something, wants to say something, wants to ask something? Okay. See, students, पहली चीज, आप जितना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, माने लेक्चर में इन्वॉल्व होंगे, उतने क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. और क्वेश्चन सामने तब आएंगे जब आपको वो चीजें समझने की कोशिश आप करो. So like first you have to try to understand the concept so that you can have number of questions in your mind. And if you get the answers to those questions, you will get the confidence, motivation and interest in the subject. The subject is not a difficult at all. It completely depends on your concept of understanding the subject. And to understand the concept, first of all, you have to get involved into it. आपको सबसे पहले इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. जनरली एक कहावत है, कहा जाता है ऐसे कि अगर किसी को समझना है तो उसके साथ रहना चाहिए. अगर किसी को आप समझना चाहते हो तो उसके साथ रहना आपको जरूरी है. अब सिर्फ रहने से नहीं होगा ना. लाइक यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इनटू इट. आपको उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. और जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आप उसको समझोगे, और जब आप समझोगे तो आप उसको जानोगे. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्वॉल्व होना जरूरी है, ना कि ये कि भैया मैंने वहां पर वीडियो ऑन कर दिया है, मैंने अपना लॉगिन कर दिया है और मैं अपना घर पे टीवी देख रहा हूँ या बाहर जाके कुछ सामान ला रहा हूँ या किचन में बैठ के मैं कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ. दिस इज नॉट द केस. सो इफ लाइक the parents are attending my class, I just request parents also that please tell your wards that they have to attend the class very seriously. And in fact they are quite experienced one. यानी वो लोग जानते हैं, parents जानते हैं, they do have their experiences, they learn from the experiences and they know everything. That if you want to understand any concept, first of all you have to involve yourself into that particular concept. तो आपको सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझने के लिए इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. और बच्चा पार्टी जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको वो चीजें बहुत समझ में आएंगे और आपको बहुत आसान लगेगी. बट टू मेक इट इजी यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इनटू इट फर्स्ट. Okay, so let us move ahead. Let us understand the next concept. अब hopefully ये आप लोगों को स्लाइड समझ में आ चुका है. अब इसी स्लाइड को मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं. So it means I just take numerical number 5. I am taking numerical number 5. अब numerical number 5 में मैं क्या लेता हूं? I just consider simple network. Okay, considering there is one voltage source on left hand side with a resistance say 10 ohms, okay, then 20 ohms, and let us say this is 30 ohms. But now there are two voltage sources present, one on left hand side and another on right hand side. Let us say this is 100 volt, this is 50 volt. Okay, are you getting my point? Now if I just consider this 100 volt is greater than 50 volt, अब यहां पर तो दिख रहा है मुझे, और आप लोग जानते हो, इनफैक्ट आप लोगों ने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में कहीं तो पढ़ा होगा कि 100 इज ग्रेटर देन 50. सो इसका मतलब ये 100 वोल्ट का इफेक्ट उस सर्किट के ऊपर ज्यादा रहेगा. सो उसके हिसाब से let us give the orientation to the loop current. Okay, now let us start with the question first. Teresa, are you able to hear me? Teresa, are you there? Yes. Okay, Teresa, can you tell me how many number of loops are present here? Okay, she said there are number of loops as is equal to 2. Okay, Teresa, can you tell me the expression to find the number of loops or mesh?
Okay, instead of E getting minus n minus 1. very good, so m is equal to e minus n plus 1. Okay, now मैं अनुराग से बात करना चाहूंगा. अनुराग राउत. अनुराग, are you there? अनुराग. ओके, यश. यश, कोई भी एक यश. यश चकोले, यश जयकर और यश लबने. यस सर. ओके, चलो वेरी गुड. दोनों यश की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आया है. यश चकोले से बात करना चाहूंगा. यश चकोले चालेल का बोललो तर? हो यश, सर. मला सांग, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती आहे याच्यात? 5. Fine. Okay, I just talk in Hindi or English because I don't think that everyone understood Marathi. Fine. So E, number of elements is E. How many number of nodes are present in this loop, in this circuit? 4. Okay, 4. 1, 2, 3, and 4. And Very one good. node. 4. And plus 1, right? So 5 minus 4 plus 1 is equal to 2. It means number of loops are 2. Okay, we are not talking about super loop, and in fact in this particular case we don't need that super loop. Okay, so ये हो गया हमारा. Now let us consider if this is your loop 1. अगर ये आपका loop 1 है तो this is our loop 2. ठीक है, let us say loop 1 current is I1. loop 1 का करंट है I1, loop 2 का करंट है I2. ओके, अब मैंने आपको कहा था कि जो ओरिएंटेशन आप loop 1 में लोगे, it is always better to follow the same orientation in loop 2 so that it becomes easier for us to write the matrix expression. That is matrix formation, and expression formation, that is equation formation, becomes easier. So now I just see I1 मैंने ले लिया clockwise, तो ये हो गया मेरा I1 clockwise, and I2 is also clockwise. अब पहले केस में न्यूमेरिकल नंबर 4 में यहां पर 0 था क्योंकि वोल्टेज सोर्स सेकंड लूप में प्रेजेंट ना होने की वजह से वी रोट इट एज 0, बट नाउ वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू. ओके, नाउ वी हैव टू फॉर्म द एक्सप्रेशन डायरेक्टली, बट लेट अस राइट द एक्सप्रेशन एंड हेंस द मैट्रिक्स फॉर लूप 1, बट वी विल राइट द इक्वेशन फर्स्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ केवीएल टू लूप 2, बिकॉज केवीएल लूप 2 में अप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर अभी 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है. Okay, so now can anyone tell me the equation, direct equation for loop 1? Loop 1 का direct equation. I don't want to solve this, and in fact you people don't need to solve. First you get the concept, first you understand the concept. Yes, tell me guys, fast. Plus 100 volt. Very good. Forget about plus 100 now. 100 is equal to, डोंट यू थिंक 10 प्लस 30, ये 10 और 30 ये दोनों में से करंट I1 पास हो रहा है. 10 और 30 ये दोनों में से करंट I1 पास हो रहा है, बराबर है? यस और नो? Yes, sir. यस. और 10 से जो डायरेक्शन है करंट का वही डायरेक्शन 30 का है. यस, 10 का जो डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन 30 से भी है. लाइक आपका ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है. तो इसका मतलब 10 एंड 30 आप क्या करोगे, यू हैव टू ऐड. सो 10 प्लस 30 कितना होगा, 40 I1. यहां तक समझा है क्या? देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से बताता हूं. मैंने ये देखा कि ये करंट I1 कौन कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, और ये करंट I1 आपका 10 ओहम्स और 30 ओहम्स से पास हो रहा है. और करंट I1 जैसे शुरू हुआ उसी ओरिएंटेशन में, यानी उसी डायरेक्शन से ये 30 से भी पास हो रहा है. सो ये क्लॉकवाइज 10 से पास हो रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 30 से पास हो रहा है. तो ये 10 और 30 मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा. आई हैव टू ऐड बोथ द रेजिस्टेंसेस. सो देयरफॉर टोटल वोल्टेज ड्रॉप मेरा क्या होगा उस रेजिस्टेंस का या उस लूप का, इट इज 40 into I1. Okay, now let us check, is there any other effect on this particular resistance? Yes. और वो कौन सा है, करंट I2. लेकिन ये I2 करंट हमने जो अज्यूम किया था उसके हिसाब से ये I2 और I1 ये दोनों कैसे है, 30 से I2 भी पास हो रहा है
30 से I2 भी पास हो रहा है, लेकिन ये I1 और I2 ये दोनों करंट्स कैसे हैं यहां पर? कैन एनीवन टेल मी? अपोजिशन, यस, बोथ आर अपोजिट. अब अगर ये दोनों अपोजिशन में है और यहां पर अगर आपने प्लस लिखा है तो यहां पर आप क्या लिखोगे? माइनस. माइनस. लेकिन ये, हाँ बोलिए बोलिए, सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? ओके फाइन. सो ये दोनों करंट अपोजिशन में है, लेकिन ये करंट ये 30 से ही पास हो रहा है, जो 30 आपका लूप 1 में हम लोग कंसीडर कर रहे थे. सो देयरफॉर दिस इज 30I2. So this is what another voltage drop for this 30 ohms. So this is our expression 1. अब ये जो expression हम लोगों ने form किया, we have formed the expression formation. This method is called as expression formation. This method is called as expression formation. मैं ये मेथड फिर से आप लोगों को बताता हूं. ये मेथड में मैंने कुछ नहीं किया है, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को मैंने यूटिलाइज किया. अब कंसेप्ट मेरा मुझे क्या करा है कि जब मैं लूप 1 कंसीडर कर रहा हूं, लूप 1 कंसीडर करते वक्त ये जो करंट मैं कंसीडर कर रहा हूं जिसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, ये करंट कौन कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है? तो ये I1 करंट 10 ओम और 30 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस से पास हो रहा है और उसका ओरिएंटेशन सेम है, यानी क्लॉकवाइज ही है दोनों रेजिस्टेंस से पास होते हुए, यानी उसका डायरेक्शन सेम. एक बार इसने शुरू किया तो वो कहीं पर भी आपका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है. So therefore you have to add both the resistances to write the voltage drop. So first voltage drop is what? 40I1. Now I have to see, is there any other effect on this 30 ohm? Is there any other effect on 10 ohm? Yes? Sir, your voice is not clear. My voice is not clear. Can you check your internet connectivity? Because presently I do have good internet on my laptop. Still just check. Okay, I'll just do one thing. मैं fan off कर देता हूँ. Just a second. Okay, now please check whether I am audible or not. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So अब ये हुआ आपका 10 ओम और 30 ओम जहां से I1 करंट पास हो रहा है और उसका ओरिएंटेशन सेम है. अच्छा, और कोई करंट है जो 10 ओम से पास हो रहा है? और कोई करंट है जो 10 ओम से पास हो रहा है? There is no other current than I1 passing through 10 ohm. But there is one more current passing through 30 ohms. Now just check the direction of that current. The direction of this current I2 is in opposition to the direction of current I1. तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो कितनी हुई? 30. लेकिन I2 इस I1 के अपोजिशन में है, इसलिए आप क्या लिखोगे? -30I2. That's all. That is expression number 1. Okay, so this way you can form the expression, and in fact this method is also helpful to form the matrix. The same way, the same method can be used to form the matrix. So therefore I just take this particular method which I have explained you just now in a square. ये स्क्वायर में मैंने लिखा हुआ. होपफुली यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 10 ओम से कोई करंट और पास हो सकता है क्या? यस, देयर कैन बी वन मोर करंट पासिंग थ्रू दिस 10 ओम. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको वो सर्किट दिखा देता हूं. आई जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर सर्किट. So वो सर्किट कैसे हो सकता है? That circuit can be like this. Just keep a patience for some more time.
So if I have circuit like this, a voltage source, resistance, say resistance, voltage source, you can take a resistance also, no issue, and one more resistance like this. So you can call, say this is 100 volt, this is 50 volt, okay, then this is say 10 ohms, say 20 ohms, 30 ohms and 40 ohms. Okay, so now if I just consider this particular circuit, ये अगर मैं circuit consider करूं, मुझे पता चल रहा है कि 100 is again greater than 50, तो यहां पर मेरा loop orientation क्या रहेगा? यहां पर मेरा loop orientation क्या रहेगा? I just consider this as numerical number 6. Yes. Okay, with respect to 100, okay, first of all, how many number of loops are present in this? 3. How many number? 3. This is loop 1. This is loop 2. Okay, why I am calling loop 2? Because the 50 is available, voltage source is available. Therefore, loop 2. Loop 3. Okay, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि सभी लूप का करंट एक ही डायरेक्शन में आपको लेना है. अगर आपने पहले लूप का करंट क्लॉकवाइज लिया तो बाकी सभी लूप्स का करंट आपका क्लॉकवाइज रहेगा. अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो सभी लूप का करंट एंटी क्लॉकवाइज लोगे, so that it becomes easier to form the expression and as well as matrix. Okay, so now just tell me fast. Clockwise, तो इसको मैंने लिया क्लॉकवाइज. अब ये भी मैं क्लॉकवाइज लूंगा. मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि सभी लूप करंट आप क्लॉकवाइज ले. हाँ, अगर आपका कोई, अब ये भी कैसे रहेगा आपका, दिस ऑल्सो विल बी क्लॉकवाइज, दिस ऑल्सो विल बी क्लॉकवाइज. लेट दिस करंट बी I1. यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं I1. ओके, दिस इज I2 क्योंकि ये लूप 2 का है, एंड दिस वन इज I3. ओके, नाउ आई जस्ट सी कि लूप 1 के लिए जब मैं एक्सप्रेशन फॉर्म करता हूं तो क्या क्या रहेगा. सबसे पहले लूप 1 में 100 वोल्ट है तो मैंने 100 लिख दिया, इक्वल टू. ओके, अब लूप 1 जब मैं कंसिडर कर रहा हूं तो कौन कौन प्रेजेंट है. एक है 100, दूसरा है 10, तीसरा है 30. बराबर. ओरिएंटेशन करंट का कैसा है, क्लॉकवाइज, और ये है I1. अब इस 30 से और कोई करंट पास हो रहा है क्या? हाँ. वो करंट कैसे पास हो रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I1. 10 से और कोई करंट पास हो रहा है क्या? हाँ. कौन सा, I3, एंड it is in opposition to I1. So this is I3. So इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, while writing the equation, I just have to consider the effect. So can you tell me the expression for this? Direct expression. Don't solve that. 100 equals to 40 100 equals I1 to 40 I1. Very good. 10 plus 30. It is 40 I1. Okay. minus 30 I2. minus Minus 30 I2 30 I2. Very good. minus 10 I3. Minus 10 I3. Very good. That's all. This is your expression 1. खत्म. Okay. अब उसी कंसेप्ट को, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, I just make a square for this concept. Sorry. Yes. अब इसी कंसेप्ट को दूसरे लूप में अप्लाई करते हैं, दूसरे लूप में अप्लाई करेंगे. ठीक है. अब दूसरे लूप में कौन कौन है, दूसरे लूप में है 20, ओके, 30 और 50. ओके, इस लूप में जो करंट का ओरिएंटेशन है वो है क्लॉकवाइज, वो करंट का ओरिएंटेशन है क्लॉकवाइज, दैट इज I2. ओके, अब 50 जो है, इस 50 में ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये ध्यान में रखना है. ये I1 जो है, ये I1 आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, लेकिन I2 इस वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब डायरेक्टली व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट इट एज -50.
Why? Because this is going from positive to negative, guys. और clockwise orientation लिया हुआ है आपने. So it is -50 is equal to. Okay, let us check. क्या यहां इस इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें से I1 करंट पास हो रहा है? हाँ, कौन सा? 30. और वो करंट I1 कैसा है? क्लॉकवाइज. क्या I1 और I2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे? -30 I1. आपने -30 क्यों लिखा? -30 इसलिए लिखा क्योंकि लूप 2 का इक्वेशन मुझे फॉर्म करना है, लेकिन I1 उस I2 के अपोजिशन में है, इसलिए यहां पर मैंने -30 I1 लिखा. और कोई रेजिस्टेंस है जिसमें से I1 पास हो रहा है? और कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसमें से I1 पास हो रहा है. सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर लूप नंबर 2 के लिए, इस पर्टिकुलर लूप नंबर 2 के लिए सिर्फ 30 ओम्स ऐसा है जिसमें से I1 पास हो रहा है. ओके, अब I2 कौन कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है? I2 ये 20 और 30 दोनों से पास हो रहा है. क्या दोनों में एक ही डायरेक्शन हो रहे है? यस, दोनों में एक ही डायरेक्शन है. तो यहां पर आप क्या लिखोगे? प्लस 30 + 20 = 50 इंटू I2. सर आपने यहां पर प्लस क्यों लिखा? यहां पर हमने I1 के लिए प्लस क्यों लिखा? क्योंकि हम वह पर्टिकुलर लूप कंसीडर कर रहे थे. अब यहां पर आप वह पर्टिकुलर लूप कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हो गया ये आपका प्लस. अच्छा, अब यहां पर तो आपका थर्ड करंट भी रहेगा. क्यों? क्योंकि यहां पर 20 ओम ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें से I3 पास हो रहा है. अच्छा, I3 का ओरिएंटेशन कैसा है आपका? I3 का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज हमने लिया था. तो क्या I2 और I3 ये दोनों अपोजिशन में है क्या? देखो तो 20 ओम से जब पास होंगे, 20 ओम से जब पास होंगे, यस, दोनों अपोजिशन में है, यानी यहां पर रहेगा माइनस साइन. -20 I3. यस, -20 I3. परफेक्ट. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. ध्यान में आ गया सब लोगों को इक्वेशन नंबर 2? सो दिस इज माय अनदर स्क्वायर. ये मेरा और एक स्क्वायर बनता है जो सेकंड लूप के लिए मुझे इक्वेशन दे रहा है. चलो अब ऊपर में जाते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल 5 की तरफ जाते हैं. क्या आप यहां पर मुझे उसी मेथोडोलॉजी में आप लूप 2 के लिए एक्सप्रेशन दे सकते हो? यहां पर है 20, ओके, यहां पर है 30 और यहां पर है 50. और यहां पर लूप 2 करंट जो है मैंने क्लॉकवाइज लिया था, और क्लॉकवाइज लेते वक्त मुझे पता चला कि ये वोल्टेज सोर्स से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है. सो दिस इज माय लूप 2. दिस इज माय लूप 2. सो कैन यू फॉर्म द एक्सप्रेशन डायरेक्टली फॉर लूप 2? -50 = ओके, -50 इज इक्वल टू, ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू, हाँ, -30 -30 -30 I1 वेरी गुड, +50 -30 I2 I1 + 50 I2. 50 I2. -20 I3. और कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं ना, हो गया, बस इतना ही तो है बेटा. I3 यहाँ पर है नहीं. न्यूमेरिकल नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग. यहाँ पर सिर्फ 2 लूप्स है, लूप 1 एंड लूप 2, और यहाँ पर तीसरा करंट है नहीं, तीसरा लूप है नहीं. तो यहाँ पर आपका आ गया -50 बराबर है, क्योंकि वो 50 से पास हो रहा है. 30 और 20 से पास होने वाला I2 करंट है, I2 करंट है, और दोनों से जब वो पास हो रहा है तो उसका ओरिएंटेशन सेम है, क्लॉकवाइज है, उसी तरीके से घूम रहा है. सो देयरफॉर 30 + 20 50 I2. और हमने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि हमने वो पर्टिकुलर लूप को कंसीडर किया हुआ है. वी आर कंसीडरिंग लूप नंबर 2. सो देयरफॉर हियर इट इज रिटन एज प्लस. यहां पर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहां जो I1 है, दैट I1 इज इन अपोजिशन टू I2. I1 and I2 both are in opposition, both are opposite. So if both are opposite, therefore you have to write it with the minus sign. So -30 I1 I2 को अपोज कर रहा है, तो -I1, बराबर. So this is what just a second. Okay, great. So this is what another square. इसको मैं स्क्वायर में इसलिए डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया इस स्क्वायर में हमने जो
लॉजिक अप्लाई किया है. दिस पर्टिकुलर स्क्वायर इज टेलिंग यू द लॉजिक टू फॉर्म द एक्सप्रेशन. इनफैक्ट डायरेक्टली यू कैन फॉर्म द मैट्रिक्स ऑल्सो. ओके, अब ये एक्सप्रेशन आप केवीएल से घर पे लिख सकते हो. जब आप आफ्टर रूम में घर पे बैठेंगे ना, रहेंगे, तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन राइट ऑन दिस. फाइन. सो कैन यू टेल मी द मैट्रिक्स नाउ? डोंट लुक इनटू द इक्वेशन. Don't look into the equation. Just tell me the direct expression, direct matrix. Sorry, just tell me the direct matrix here. यहाँ पर क्या रहेगा? Fast. 40 Row 1, column 1. plus 30 R 40 minus 30 Yes, fast. Minus 30, fast. minus 30 50 Minus 30, 50, 50. I1 Very good. I2 40 minus 30 minus 30 50. Very good. यहाँ पर I1 I2. Very good. यहाँ पर 100 or minus minus 50 100 minus 50. बस दैट्स ऑल. चलो न्यूमेरिकल नंबर 6 में देखते हैं. अब मेरा देखो थर्ड लुक मैंने फॉर्म नहीं किया है. आई हैव टू फॉर्म अ थर्ड लुक. कैन यू टेल मी थर्ड लुक? क्योंकि अच्छा थर्ड लुक न फॉर्म करते हुए कैन यू टेल मी द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स के लिए आई डोंट हैव स्पेस ना, बट ठीक है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ. आई जस्ट यूटिलाइज दिस स्पेस. ओके ओके जस्ट अ सेकेंड गाइस. ये मैं स्ट्रक्चर पहले बना लूं, फिर आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग द वैल्यूज. ओके, आई जस्ट सिलेक्ट वन मोर कलर टू राइट द वैल्यूज. ठीक है, बताइए फास्ट. ये मैट्रिक्स आपका कैसे बनेगा? न्यूमेरिकल नंबर 6 हम लोग डील कर रहे हैं. होपफुली यू ऑल आर गेटिंग दैट डिफरेंस फॉर्मेशन. डिफिकल्ट हो रहा है क्या? कैन एनीवन टेल मी? सर नहीं समझ में आएगा, पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? एनीवन? डोंट हेजिटेट. इक्वेशन फॉर्म करते हैं. बरं चलो कोई दिक्कत नहीं. लेट अस फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, बताइए. अब इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर वो स्क्वायर बना लेता हूँ. कौन कौन से रेजिस्टेंस है जिसमें से लूप 3 आपका करंट I3 पास हो रहा है? सो एक है 40, एक है 20 और एक है 10. ठीक है, और यहां से जो करंट पास हो रहा है वो करंट है आपका I3. यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I3. ओके, अब 40 से और कोई करंट पास हो रहा है क्या? नहीं. 10 से और कोई करंट पास हो रहा है क्या? हाँ. कौन सा? I1. और उस I1 का ओरिएंटेशन कैसा है? ऐसा, अपोजिशन. I2 से और कोई करंट पास हो रहा है? हाँ. कौन सा? I2. सॉरी, 20 से और कोई करंट पास हो रहा है, दैट इज I2. सो दिस इज माई स्क्वायर. Loop number 3. Okay, can you form the equation now? Okay, is there any voltage source present here? No. No. So it means if you don't have any voltage source, you can directly put it as 0 is equal to. Yes, now tell me. आपको सबसे पहले I1 लिखना होगा. -10I. Why you are writing -10I बेटा? Why you are writing -10I1? Opposite direction. opposite direction Yes. था करंट का. I1 and I2 both are in opposition. I1 and I2 both are in opposition. So -10I1. फिर उसके बाद minus 20 I2 okay, why again you are writing -20I2? I2 and Opposite I3 are in direction. opposite direction. Yes, I2 and I3 both are in opposition. Both are in opposition. Very good. plus 70 I3 Okay, why you are writing plus here? same loop case. Yes, because we are writing the expression for this particular loop where we have the current I3 flowing. Okay, why you are getting 70 here? ऐड किया तूने. Yes, क्योंकि ये 40, 20, 10 ये तीनों से I3 पास हो रहा है. अगर आपको पूछा जाए कि I3 कौन कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि लूप 3 में ये I3 40, 20, 10 से पास हो रहा है और उसका ओरिएंटेशन करंट का सेम है. तो उस वजह से 40 plus 20 60, 60 plus 10 is 70. एंड प्लस हम लोग लिख रहे हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर लूप. लूप 3 हम लोग कंसिडर कर ले और लूप 3 के लिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं. देयरफॉर ओवर हियर यू हैव टू राइट डाउन प्लस साइन. सो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन 3. दैट्स ऑल. ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. सबसे पहले हम लोग ये फिलअप करते हैं, ये वाला मैट्रिक्स. ये बताइए जल्दी, फास्ट 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 फास्ट. -50 0 100 minus 50 0. -50 0. ये मैट्रिक्स कैसा हुआ आपका?
कैसा हुआ मैट्रिक्स? 1/3, 3/1, 1/3. 1/3 Sorry. हाँ. या 3/1, आई डोंट नो. चलो ठीक है. 3/1. So 1/3. 1/3 आई डोंट, आई थिंक सी, बिकॉज 3/1. m इंटू m. ठीक है, वो देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स वाले मैडम से आप पूछ लीजिएगा कि ये मैट्रिक्स कौन सा है. रो कॉलम में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भैया ये कॉलम है या ये रो है. 3/1 है. 3/1. 3/1 है पक्का? चलो Yes, ठीक है. 3 रो है और 1 कॉलम है. 3 rows and 1 column. So m indicates rows and n indicates column. Fine. चलो, now tell me this. यहाँ पर क्या रहेगा? I1, I2, I3. Very good. I1, I2, I3. Okay. यहाँ पर बताते जाइए fast. 40 minus 40 30. minus 30 minus 10 Minus 10. Very good. minus 30 50 Minus minus 30. 20 Minus 30. 50 Minus minus 30. 20 Very good. Minus 20. यहाँ पर Minus 10 minus Minus 20. 10 minus 20 plus 20. plus 70. Yes, that's all. This is what your matrix is. यानी जितने भी सर्किट्स हमें एक्सप्लेन करने थे आज के क्लास में वो सारे हो चुके हैं. अब आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, पुट इट इनटू द कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर्स फॉर I1, I2 एंड I3. So in next lecture, I may take Monday wala ek lecture. So depends on the availability of the slot. So I may take extra lecture on Monday. It is required because we have to complete the nodal analysis. So on Monday's lecture, I'll give you the answers to these values, and I'll take one more pattern of numerical, that is of super loop, super mesh wala ek hum log numerical lenge. So all of you are just instructed to take a screenshot of it. Just take a screenshot of it. So 5th question. उसे शेयर कर दूंगा YouTube पे, कल का लेक्चर और आज के लेक्चर दोनों का. हाँ. You have to find out the answer for I1 and I2. And on Monday's lecture, we will have verification. हम लोग वेरीफाई कर लेंगे आपका आंसर और मेरा आंसर. सर एक डाउट था सर. बोलिए बोलिए. सर रिगार्डिंग प्रैक्टिकल next सर slide. वो आपने जो दो हाँ सर जो बोलिए, दो बोलिए. नेटवर्क एनालिसिस के जो प्रैक्टिकल दिए सर आप वो उसमें वो पीडीएफ में सर रीडिंग भी है तो सर वही सेम रीडिंग निकालनी कि आपने जो प्रैक्टिकल में रीडिंग दी है वो डालने उसमें. मेरे ख्याल से हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जब रीडिंग्स खुद के लिए है तो क्यों ना हम हमारे रीडिंग्स लिखे, चलेगा? ओके सर. है ना. मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जब उस प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व थे, प्रेजेंट थे, तो वो प्रैक्टिकल रीडिंग्स लिखे तो बेहतर रहेगा. एंड इनफैक्ट हम लोगों ने पहले प्रैक्टिकल के लिए 2 रीडिंग्स लिए थे. पहले प्रैक्टिकल के लिए 2 रीडिंग्स लिए थे या 3 रीडिंग्स लिए थे? हाँ सर वो लिए थे सर उसके लिए भी 3 रीडिंग्स लिए थे और दूसरे के लिए भी हम लोगों ने 3 रीडिंग्स लिए थे. नहीं, दूसरे के लिए हम लोगों ने एक ही रीडिंग लिया था और क्योंकि मैं अकेला होने की वजह से हम लोगों ने वो प्रैक्टिकल दूसरे 2 रीडिंग्स नहीं ले पाए. तो कोई दिक्कत नहीं. ये वाला जो टर्न रहेगा थर्सडे वाला टर्न, ये थर्सडे वाले टर्न में हम लोग उसके बचे हुए 2 रीडिंग्स भी ले लेंगे एंड वी विल परफॉर्म द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम. ठीक है. तो सर जो अभी निकाले वही लिखना है ना? हाँ, हम लोगों ने जो रीडिंग लिए थे वही लिखने हैं. ओके सर. और सर वो जो पीडीएफ के रीडिंग है वो नहीं लिखना है ना? नहीं, पीडीएफ वाले रीडिंग्स आपको नहीं लिखने हैं. ओके सर. हाँ सर 6th वाला क्वेश्चन. हाँ 6th वाला. Okay, now all of you please start putting down your attendance. Serially आपको लिखना है. Roll number 1 to 10. Serial number 1 to 10. Roll number 1 to 10. Serially. Okay, very good. Roll number 11 to 20.
Okay, 11 to 20, done. Okay, 21 to 30. (21 to 30 हो गया. Okay, 31 to 40. ठीक है. 31 to 40. Okay, 41 to 50. 41 to 50. (41 to 50). 51 to 60. 51 to 60. Okay, so thank you so much, guys. Take care. Yes, 61, 62, 63, 64, 65. They also can put their attendance. Hopefully you all have put. Thank you so much. Take care. Bye bye. Have a nice weekend. Thank you, sir.